Hello everyone. In the last class we had discussed about the general characteristics of the bryophytes. In today's class we are going to discuss about the classification of the bryophytes. जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो द टर्म ब्रायोफाइट इट वाज फर्स्ट गिवन बाय ब्रॉन. However, he included algae, fungi, lichen and mosses in this group. Later, algae, fungi and lichens were placed in a separate division, Thallophyta, and liverworts, mosses in division Bryophyta. The rank of division Bryophyta to this well-defined group of plant was first given by Schimper. यानी सबसे पहले इस शब्द को ब्रायोफाइटा जो शब्द था ये दिया गया था ब्राउन के द्वारा. लेकिन इस ब्रायोफाइटा को जो डिवीज़न जो रैंक दी गई थी इट वाज गिवन बाय शिम्पर इन 1879. बहुत से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन के पैटर्न दिए हैं. आइक्लर ने 1883 के अंदर ही वाज फर्स्ट टू डिवाइड द ब्रायोफाइटा इनटू टू ग्रुप्स. ही डिवाइडेड ब्रायोफाइट्स इनटू हेपेटेसी एंड मसाई. उसके बाद में एंगलर ने 1892 के अंदर ही रिकॉग्नाइज्ड हेपेटेसी एंड मसाई as the two classes and divided each class into the following three orders. That was Bryophyta. It was divided into the class Hepataceae, which was divided into three orders, that is Marchantials, Jungermannials and Anthocerotales. उसके बाद में the next class was Masai, and which was divided into three orders, that was Spagnels, Andriels and Bryals. Due to isolated characteristics of Anthoceros and related genera, Howe ने 1899 के अंदर he raised the order Anthocerotales to the rank of a class and divided division Bryophyta into three classes. यानी होवे ने 1899 के अंदर Anthoceros के जो characteristics है they are different from, they have some peculiar characteristics from the rest of the bryophytes. और इस आधार पे उन्होंने ब्रायोफाइटा को तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया. दैट वाज हेपेटेसी, एंथोसेरोटीज एंड मसाई. दिस सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन वाज फॉलोड बाय स्मिथ, तक्काजान, वार्डलॉ, सुस्टर, बट प्रिफर्ड टू कॉल क्लास एंथोसेरोटीज एज एंथोसेरोटी. इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर ने सजेस्ट किया कि सफिक्स ऑप्सिडा should be used for the classes, and such uses of already been proposed by Rothmüller for the classes of bryophytes. यानी ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर ने 1956 के अंदर यह कहा कि ब्रायोफाइट्स के लिए जो सफिक्स काम में लिया जाता है that should be used ऑप्सिडा for the class. That's why he changed the class names as class first, that was Hepataceae, it was changed into Hepaticopsida. Class second, Anthoceroti, it was changed as Anthoceropsida. And class third, that was Masai, it was changed as Bryopsida. Proskor ने 1957 के अंदर कहा कि द क्लास नेम Anthoceropsida should be Anthocerotopsida. Parihar and Holmes followed Poroskor's classification and divided Bryophyta into three classes. So the class first it was Hepaticopsida, class second it was Anthocerotopsida, and the class third it was Bryopsida. So thus we can say Bryophyta was divided into three classes. It was Hepaticopsida, it was Anthocerotopsida, and it was Anthoceropsida, and it was Bryopsida. When it comes to the class Hepaticopsida, that is liverworts, उनके जब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो this class includes 280 genera and 9,500 species. The name of this class is derived from a Latin word hepatica, which means liver. Hence, the member of this class are commonly known as liverworts. Liverworts और Hepaticopsida की जो प्लांट बॉडी है दैट इज गेमेटोफाइटिक, दैट इज हैप्लॉइड, एंड गेमेटोफाइट इज आइदर थैलोइड और फोलियोस.
और यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है हमें गेमेटोफाइटिक फेज जो डोमिनेंट रूप से देखने को मिलती है। जो थैलोइड फॉर्म्स हैं विच मीन्स कि दे कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, दे आर प्रोस्ट्रेट, लॉब्ड, डॉर्सिवेंट्रल एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। और जब हम फोलियोस फॉर्म्स की बात करते हैं तो लीव्स आर एंटायर, लॉब्ड और डिवाइडेड एंड विदाउट मिड रिब। लीव्स अरेंज इन 2 और 3 रोज ऑन द एक्सिस, यानी लीव्स का डेवलपमेंट हमें एक्सिस के ऊपर देखने को मिलता है और वो 2 या 3 रोज के ऊपर हमें एक्सिस के ऊपर दिखाई देती हैं। इनके अंदर जो राइजोइड्स पाए जाते हैं दे आर यूनिसेलुलर एंड ब्रांच्ड। एंड फोटोसिंथेटिक सेल्स दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की प्रेजेंस उनके अंदर हमें देखने को मिलती है। इनके अंदर पायरोनोइड्स एब्सेंट होते हैं। एंड जब हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं तो दे आर बोर्न डोर्सली और एपिकली, सुपरफिशियली और एम्बेडेड इन द गेमेटोफाइटिक टिश्यू, यानी वो थैलस के अंदर धसे हुए देखने को मिलते हैं। हेपेटिकोप्सिडा के जो मेंबर्स हैं दे में बी मोनोइसियस और डायोसियस। It means the male and the female reproductive structure, they may be born on the same thallus or they may be born on the different separate thallus. Sporophyte is either simple or represented by capsule only in case of Rixia, or may be differentiated into foot, seta and capsule as is the case in Markensia. Sporophyte का डेवलपमेंट हमें गेमेटोफाइट के ऊपर देखने को मिलता है और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैप्सूल, जैसा कि हमें रिक्सिया के अंदर देखने को मिलता है। जब हम इंडिविजुअल मेंबर्स को स्टडी करेंगे तब आप लोगों को और ये क्लियर हो जाएगा। और द स्पोरोफाइट इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सिटा एंड कैप्सूल, जैसा कि हमें मार्केंसिया के अंदर देखने को मिलता है। एंड आर्कीस्पोरियम की जब बात करते हैं दैट इज एंडोथीसियल इन ओरिजिन। स्पोरोजिनस टिश्यूज आइदर फॉर्म्स ओनली स्पोर्स, जैसा कि रिक्सिया के अंदर हमें देखने को मिलता है, और they are differentiated into sterile elaters mother cells और fertile spore mother cells। जैसा कि जैसे जैसे हम रिक्सिया से मार्केंशिया, एंथोसिरोस और जैसे जैसे हम हाई ब्रायोफाइट्स की तरफ बढ़ते जाते हैं वहाँ पे जो आर्कीस्पोरियल जो टिश्यूज है उनका डिफ्रेंशिएशन हमें देखने को मिलता है, यानी जिससे स्पोर्स बनते हैं उन टिश्यूज से उनका डिफ्रेंशिएशन हमें देखने को मिलता है और वो इलेटर्स और स्टेराइल मदर सेल्स या स्टेराइल सेल्स का निर्माण भी करते हैं। हेपेटिकोप्सिडा के अंदर जो कैप्सूल होता है उसके अंदर कोलुमिला नहीं पाई जाती या उसका अभाव हमें देखने को मिलता है। इलेटर्स की जब बात करते हैं तो दे आर यूनिसेलुलर, दे आर हाइग्रोस्कोपिक विथ स्पाइरल थिकनिंग, यानी उनकी शरीर के उनकी इलेटर्स के ऊपर हमें स्पाइरल थिकनिंग देखने को मिलती है। दे आर हाइग्रोस्कोपिक, इट मीन्स दे एब्जॉर्ब वाटर, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड दे हैव द स्पाइरल थिकनिंग। दिस प्रोसेस, दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर हेल्प्स in the dispersal of the spores. Capsule wall is 1 to several layers thick and without stomata. Dehiscence of the capsule is irregular or in definite number of the walls. उनकी dehiscence के अंदर हमें जो कैप्सूल का जो dehiscence देखने को मिलता है इट में भी irregular और उस कैप्सूल के ऊपर हमें definite number of walls देखने को मिलते हैं जिससे स्पोर्स का डिस्पर्सल हमें देखने को मिलता है। स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन फॉर्म द गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, प्लांट सो हिट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी उनके अंदर हमें हिट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। यदि हम अगली क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा की बात करें दैट इज हॉर्नवर्ड्स, इनके यदि हम सामान्य जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 6 genera and 300 species। इनकी प्लांट बॉडी होती है दैट इज़ फ्लैट, डोर्सिवेंट्रल चपटी होती है दैट इज थैलोइड, इट मीन्स कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, एंड इट इज़ गेमेटोफाइटिक फेज जो होती है दैट इज डोमिनेंट एंड इट इज़ वेरियसली लोब्ड। एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंदर हमें स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स देखने को मिलते हैं, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स एंड स्केल्स आर एब्सेंट, यानी इनके अंदर स्केल्स और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स की एब्सेंस देखने को मिलती है। जो इनकी थैलस होती है व्हेन वी टेक द ट्रांसफर सेक्शन या इंटरनली हम बात करें तो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू जोन्स। एंथोसिरोटॉप्सिडा की जो थैलस के अंदर जो सेल्स हमें देखने को मिलती है दे आर ऑल अलाइक, एयर चेम्बर्स और एयर पोर्स आर प्रेजेंट। दिस इज ए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंथोसिरोटॉप्सिडा। प्रत्येक सेल के अंदर हमें सिंगल क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है एंड ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स ए सिंगल पायरेनोइड।
की प्रेजेंस हमें इनके अंदर देखने को मिलती है। इनके अंदर म्यूसियोलिजिनस कैविटीज़ देखने को मिलती है जो कि विच ओपन ऑन द वेंट्रल सरफेस बाय स्लाइम पोर्स के द्वारा वो ओपन होती है, और वेंट्रल सरफेस पे म्यूसियोलिजिनस कैविटीज़ हमें देखने को मिलती है। और इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स दे आर एम्बेडेड इन थैलस एस, जो कि हमें रिक्सिया एंड मार्किंसिया के अंदर भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलते हैं। एंथ्रीडिया डेवलप आइदर सिंगली और इन ग्रुप्स इन क्लोज्ड कैविटीज कॉल्ड एंथ्रीडियल चैम्बर्स, यानी यहाँ पे एंथ्रीडियल चैम्बर्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है जिसके अंदर एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड्स एंड इंटरमीडिएट जोन और मेरिस्टेमेटिक जोन एंड कैप्सूल। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टेमेटिक जोन द स्पोरोफाइट शोज indeterminate growth, that means it continues to grow indefinitely, वो लगातार वृद्धि करता रहता है। आर्कीस्पोरियम इज एम्फिथेसियल इन ओरिजिन। Sporogenous tissues form the fertile spores and the sterile elaters. Elaters do not have spiral thickening and are also known as pseudoelaters, यानी जब हम हेपेटिकोप्सिडा की बात करते हैं तो वहाँ पे इलेटर्स हमें देखने को मिलती है, उनके ऊपर स्पायरल थिकनिंग देखने को मिलती है। जबकि हम एंथोसिरोटोप्सिडा की बात करते हैं तो इसके अंदर जो इलेटर्स पाई जाती हैं दे आर सूडो इलेटर्स, बिकॉज उनके ऊपर हमें स्पायरल थिकनिंग देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे जो कैप्सूल वाल पाई जाती है दैट इज़ 4 to 6 लेयर थिक एंड एपिडर्मिस हैज स्टोमेटा। दिस इज ए स्पेसिफिक या वी कैन से पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंथोसिरोटोप्सिडा, यानी यहाँ पे स्टोमेटा की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। Capsule matures from apex to base and usually dehisces by 2 valves. The class Anthocerotopsida has only a single order, Anthocerotales. Muller, Poroskar, Reimers divided the order Anthocerotales in 2 families. They divided Anthocerotopsida into Anthocerotaceae, जिसका मेंबर एंथोसिरोस, और द सेकेंड फैमिली इट वाज नोटोथाइलेसी, जिसका मेंबर नोटोथाइलस होता है। द नेक्स्ट क्लास इज ब्राइप्सिडा विच आर कॉमनली नॉन एज मॉसेस। इनके जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इट इज़ द लार्जेस्ट क्लास इन द ब्रायोफाइटा एंड इंक्लूड्स अबाउट 700 जेनेरा एंड 14,000 स्पीसीज। इनकी मेन प्लांट बॉडी भी गेमेटोफाइटिक होती है एंड इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 2 स्टेजेस, दैट इज जुवेनाइल स्टेज एंड लीफी स्टेज और गेमेटोफोर। जब हम जुवेनाइल स्टेज की बात करते हैं तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन फिलामेंटस ब्रांच स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटोनेमा विच डेवलप्स फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर, जो कि स्पोर के जर्मिनेशन जो पहली जो स्ट्रक्चर बनती है, थैलोइड स्ट्रक्चर बनती है, which is filamentous structure that is called as a protonema. Gametophore are erect leafy structures which developed on the protonema, यानी प्रोटोनेमा के ऊपर गेमेटोफोर की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, उनके या उनका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। एंड गेमेटोफोर कैन बी branched or unbranched and can be differentiated into 3 parts, that is rhizode, stem and leaves. यानी प्रोटोनेमा स्ट्रक्चर होती है, दैट इज ए जुवेनाइल स्ट्रक्चर, दैट इज ए थाइलॉइड स्ट्रक्चर या फिलामेंटस स्ट्रक्चर। इट कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जबकि गेमेटोफोर इट इज क्लियरली डिविजिबल इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, या दैट इज राइजोइड, स्टेम एंड लीव्स। ब्रांचेस अरेज फ्रॉम बिलो द लीव्स, इनके अंदर जो ब्रांचेस जो लगती हैं वो लीव्स के नीचे से उनका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। लीव्स आर विथ midrib, unlobed and arranged spirally in 3 to 8 rows on the axis. Or rhizoids are multicellular, filamentous, branched with oblique septa. यानी राइजोइड्स जो देखने को मिलते हैं दे आर मल्टीसेलुलर, दे आर फिलामेंटस, दे आर ब्रांच्ड, उनके अंदर ऑब्लिक सेक्टा, तिरछे पट्ट देखने को मिलते हैं। द एक्सिस इज डिफरेंशिएटेड इनटू सेंट्रल कंडक्टिंग स्टेम एनक्लोज्ड बाय कॉर्टेक्स। बीच के अंदर, एक्सिस के बीच के अंदर हमें एक सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड देखने को मिलता है, जिसके बाहर की तरफ हमें कॉर्टेक्स देखने को मिलती है। इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स जो बनते हैं दे आर बोर्न एपिकली इन द ग्रुप्स और ऑन द मेन स्टेम और ए ब्रांच। द स्पोरोफाइट इज ग्रीन इन अर्ली स्टेजेस एंड इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल।
अर्ली स्टेजेस के अंदर स्पोरोफाइट इट इज़ ग्रीन इन कलर एंड लेटर ऑन it is differentiated into food seta and capsule. The seta is usually elongated and rigid. Columella is usually present and enclosed, and it is endothecial in origin. Archisporium की बात करें तो that is the spore producing tissue. It is differentiated only in spores. यानी इसके अंदर आर्कीस्पोरियम का डिफरेंशिएशन हमें इनके अंदर देखने को नहीं मिलता। जैसा कि हम एंथोसिरोटॉप्सिडा की बात करते हैं तो वहाँ पे आर्कीस्पोरियम का डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे वो इलेटस का निर्माण भी करते हैं, सूडो इलेटस का निर्माण करते हैं। हेपेटिकोप्सिडा की बात करते हैं तो वहाँ पे इलेटस का निर्माण करते हैं। एंथोसिरोटॉप्सिडा की बात करते हैं तो वहाँ पे सूडो इलेटस का निर्माण करते हैं। तो उनका डिफरेंट आर्कीस्पोरियम का डिफरेंशिएशन हमें डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर देखने को नहीं मिलता। इलेटस आर एब्सेंट in Bryopsida, and dehiscence of the capsule takes place by separation of lip or operculum. एक स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल होता है उसके ऊपर एक ओपरकुलम या एक लीड लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। तो जब वो लीड लाइक स्ट्रक्चर हट जाती है तब स्पोर्स उससे बाहर निकल करके आते हैं। पेरिस्टोम हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ द स्पोर्स। टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है कैप्सूल के अंदर जिनका काम स्पोर्स के डिस्पर्सन में मदद करना होता है। स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस प्रोटोनेमा, और जो स्पोर्स जो जर्मिनेट होते हैं वो प्रोटोनेमा का निर्माण करते हैं। नाउ द वेरियस कैरेक्टर्स आर यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रायोफाइट्स। तो जब हम ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं इनटू द डिफरेंट क्लासेस, तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज सच कि उनके एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द थैलस किस तरह से देखने को मिलती है, किस प्रकार के राइड्यूट्स हमें देखने को मिलते हैं, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, ट्यूबरकुलेटेड है, सिंपल है, टाइप्स ऑफ स्किल्स किस प्रकार के पाए जाते हैं, पोजीशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स क्या है, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द स्पोरोफाइट किस तरह का और किस नेचर का स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हमें उनके अंदर देखने को मिलता है, एंड डिग्री ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन द स्पोरोफाइट कि आर्कीस्पोरियम इज़ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स, या उसके अंदर हमें डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है, या इलेटर मदर सेल्स का निर्माण उसके अंदर हमें देखने को मिलता है।